Hello friends. Today I am discussing term proxemics. See, proxemics term was introduced by anthropologist Edward T. Hall in 1966. Actually, proxemics is the study of set measurable distance between people as they interact. And you may say the effect of proxemics can be summarized by some following rules, as well as body spacing, posture. And according to Hall, these are unintentional reactions to sensory fluctuations or shift, such as subtle changes in the sound and pitch of a person's voice. Social distance between people is reliably correlated with physical distance. Okay, so some according to Hall, some intimate distance for embracing, touching, or whispering. This is the example. Or close phase, if there is a distance less than 6 inch or 15 centimeter, then it is known as close phase. And far phase, it is 6 to 18 inch. Close phase. You may say it is less than 6 inch, less than 6 inch. And when we talk about far phase, this is far phase. It is less 6 to 18 inches. So it comes under intimate distance for embracing, touching, or whispering. Close phase, far phase, and personal distance for interactions among good friends or family members. And under this, close phase is 1.5 to 2.5 feet. Second one is personal distance. Second one is here personal distance. And this personal distance, you may say once again, close phase, and another one far phase. And close phase is again here, it is 1.5 to 2.5 feet, and far phase it is 2.5 to 4 feet. And social distance for interaction among acquaintances, or social distance. So social distance, again, it is close phase and far phase. So close phase here, it is 4 to 7 feet, and far phase is 7 to 12 feet. And the next one is public distance. Again, it is close phase and far phase. And it is public distance is used for public speaking, as well as people speak in public together. So it is used for public speaking, and it is again close phase and far phase. So here it is 12 to 25 feet, and here it is 25 feet. So these are some terms given by anthropologist Edward T. Hall about proxemics. And Hall tells that different culture maintain different standards of personal space, okay, in different countries. For example, in Latin culture, okay, the relative distances are smaller, okay, and people tend to be more comfortable standing close to each other. आपने देखा होगा कि जो लैटिन कल्चर में है, जैसे इंडिया में है, तो थोड़ा मतलब डिस्टेंस रखा जाता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस को वो वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत वेस्टर्न कल्चर, बहुत खुला कल्चर है, उसमें स्पेसिंग बहुत कम रखी जाती है। यहाँ इंडिया में स्पेसिंग ज़्यादा रखी जाती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। एंड इन नॉर्डिक कल्चर,
it is opposite to Latin culture. Realizing and recognizing these culture differences improves cross culture understanding. So by this we can understand the culture of other countries also, and helps eliminate discomfort people may feel if the interpersonal distance is too large or too small. So comfortable personal distances also depend on the culture, social situation, gender, and individual preference. So this was about proxemics, and some graph is you may write draw here a graph also. This is personal space, personal space, personal space, and it is here social space, social space, and it is public space, public space. So this shows that personal space works under social space, and social space under public space. This is a small example diagram is given by Edward T. Hall of personal reactions bubbles. This is known as personal reactions bubbles. Okay, so for mass communication students it was about proxemics, and in next lecture we will discuss some another thing. Thanks. Hello students, today I am discussing here paralanguage. See, paralanguage means oral communication does not just occur through words altered. Means जो हमारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो केवल हमारे वर्ड्स से ही नहीं पता लगता है, उस वर्ड्स में भाव छुपे होते हैं. मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए पिच है, और हमारा टेम्पो है, रेंज है, रेजोनेंस है, और क्वालिटी ऑफ वॉइस, ये रिकॉग्नाइज करा देते हैं हमको एज के बारे में, सेक्स के बारे में, इमोशनल स्टेट के बारे में, और पर्सनैलिटी के. एग्जांपल के लिए अगर कोई उसकी आवाज़ से हम समझ सकते हैं कि उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा, वेदर इट विल बी मेल और फीमेल. फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज़ टॉकिंग इन वेरी वेरी लो पिच, और मतलब लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसका जो एक सुरीलापन होता है वो अलग होता है. लड़का है तो उसका आवाज़ में थोड़ा सा मोटापन होगा, हार्शनेस होगी, तो उसको आवाज़ को पहचान के हम पता लगा सकते हैं. इसके अलावा आप पता लगा सकते हैं जैसे टेम्पो है तो स्पीकिंग टू फास्ट, बहुत तेज़ी से बोल रहा है या बहुत धीरे बोलना जो है वेरिएशन कहलाता है टेम्पो का. तो ये सब हमें पैरा लैंग्वेज के अंडर आते हैं, और पैरा लैंग्वेज जो है एक तरह से हमें बता देता है, इट इज़ अ क्लू अबाउट एज, सेक्स, इमोशनल स्टेट, पर्सनैलिटी. जैसे एग्जांपल के लिए अगर बहुत बूढ़ा आदमी है तो वो थोड़ा धीरे बोलेगा, और जो जवान है वो थोड़ा सा तेज़ बोलेगा. या इमोशनल स्टेट, बहुत गंभीर व्यक्ति है या परेशान व्यक्ति है, उसका इमोशंस से पता लग जाएगा, बोलने से उसकी पता लग जाएगा ये आदमी परेशान है, और अगर खुशी है तो उसका इमोशंस अलग होंगी. तो दीज ऑल थिंग्स comes under paralanguage. So the pitch, tempo, range, resonance and quality of voice and a lot of fresh and blood to the words, these vocal characteristics and vocal sounds constitute paralanguage. यानी जो vocal characteristics हैं और vocal sounds हैं इसके अंडर में ही क्या आते हैं, paralanguage आते हैं. Speaking without pitch variation makes the speech monotonous. यानी कि अगर हम बिना pitch variation के बोलें, जैसे आप देख रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ तो कभी मेरी आवाज़ कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, अगर ये चीज़ ना होगी तो एक तरह से हमें वॉइस से मतलब मोनोटोनस वॉइस हो जाएगी, हमारी स्पीच मोनोटोनस हो जाएगी ना. एक बिल्कुल एक उसमें इम्पॉसिबल भी है, एक उसमें हम नहीं कर सकते. स्पीच को हमें कहीं अकॉर्डिंग टू हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच में या अपने टॉक करते हैं. तो ये सब किस में आता है, पैरालैंग्वेज. सो मेन थिंग हियर इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि द पिच, टेम्पो, रेंज, रेजोनेंस एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस एड लॉट ऑफ फ्रेश एंड ब्लड टू द वर्ड्स. यानी ये जितनी चीज़ें हैं
ये सब किस में आती हैं? ये सब पैरेलल लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। और पैरेलल लैंग्वेज गिव्स एज अ क्लू अबाउट एज, सेक्स, इमोशन, स्टेट, पर्सनैलिटी। ये सब के बारे में कौन बताया? पैरेलल लैंग्वेज। Hello friends, today I am here to discuss about smell and taste. As you are familiar with the smell and taste, I think we receive a lot of information about our environment through a sense of smell. मतलब हम जो environment के बारे में information पता करते हैं वो एक तरह से smell से भी पता करते हैं। जैसे जिसको आप कह सकते हैं खुशबू आना, सुगंध आना, मतलब स्मेल आना। और टेस्ट, टेस्ट आप जानते हैं स्वाद आना। लाइक ए पार्टिकुलर फ्रेगरेंस अनाउंसेस द अराइवल ऑफ ए पार्टिकुलर person. Body odor also provide clues about a person's हाइजीन स्टेट। तो इसी तरह से बॉडी ऑर्डर जो है वो बता देती है एक व्यक्ति की हाइजीन स्टेट क्या है, उसके बारे में क्लू देती है। एंड वी ऑल्सो सेंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्मेल। वी यूज़ डिओड्रेंट हम यूज़ करते हैं, और बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, हैंकी स्प्रे यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, स्मेल में आता है ना। तो वी यूज़ ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं टू हाइड स्मेल ऑफ ऑनियन और गार्लिक। वी ब्रश आवर टीथ। आपने देखा, हम जैसे हमने कुछ खाया तो हम क्या करेंगे, अपने स्मेल वाली चीज़ें खा लिया हमने, मान लीजिए प्याज खा लिया, तो हम क्या करते हैं उसके लिए अपने दांतों को साफ़ करते हैं और माउथ वॉश करते हैं। तो इसी तरह से मतलब ये नॉर्मल चीज़ है जो हम स्मेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सभी परिचित हैं। लाइक स्मेल, टेस्ट इज आल्सो ए साइलेंट सेंस। ये भी मतलब इसको देखा नहीं जा सकता। देखिए, ना तो स्मेल को आप देख सकते हैं ना टेस्ट को देख सकते हैं, हाँ बस इसको फील कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो साइलेंट सेंस। इसलिए दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? साइलेंट सेंस दैट रिसीव एंड सेंड मैसेज। तो इनके थ्रू मैसेज पहुंच जाता है। मतलब मैसेज मीन्स ये मैसेज चला जाता है कि भाई आप बदबू वाली जगह तो आप जाना पसंद करेंगे, और सुगंध वाली जगह, अच्छी स्मेल है तो आप उस जगह रुकना पसंद करेंगे। साथ में कई चीज़ों का पता लगता है। टेस्ट से आपको पता लग जाता है कि क्या है, मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। सो दिस वाज वेरी स्मॉल थिंग, स्मेल एंड टेस्ट इन इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Hello students, today I am here to discuss about verbal and written communication. Verbal communication means जो हम मैसेज जो कि मीन्स हम स्पीक करते हैं। जैसे मतलब स्पीक अगर करते हैं तो आवाज़ के थ्रू स्पीक करते हैं। Verbal communication refers to spoken messages that we transmit by producing sounds. ओके, ओरल कम्युनिकेशन में दोनों आते हैं। देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स जो हैं दोनों किस में आते हैं? ओरल कम्युनिकेशन में। और ये जो हमारे दोनों ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं, मोस्टली हम जो है ज़्यादातर जो अपना टाइम करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में स्पेंड करते हैं, है ना। चाहे वो स्पीकर हो या लिसनर हो, दोनों में ही किस में जाता है? ज़्यादातर टाइम हमारा वर्बल में जाता है। तो जब हम कहीं रिटन कम्युनिकेशन, रिटन अलग है और वर्बल अलग है। मतलब वर्बल जो आएगा हमारा एक तरह से जो वर्बल है और नॉन वर्बल, दोनों ही किसके पार्ट हैं? वर्ब, यानी जिसमें काम हो रहा है, क्रिया हो रही है ना। ये सब दोनों ही किसके पार्ट हैं? ये दोनों ही पार्ट हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। बट रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा अंतर है। रिटन कम्युनिकेशन नाम से आपको पता लगता है मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू बाय रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स। ओके, जो कि मतलब प्राइमरी जैसे रिटन है तो ये वर्ब में, वर्बल में आ गया, वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा ये भी, मतलब लिखना। जैसे हम प्रिंट प्राइमरीली जो है वर्बल होता है ये। और नॉन वर्बल जो है डायमेंशन भी है साथ में लिखने। जैसे प्रिंटेड मटेरियल है वो कैसे हैं? फॉर्मल हैं। जो प्रिंटेड मटेरियल हैं वो कैसे हैं? फॉर्मल हैं। लेकिन जब हैंड रिटन लेटर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? पर्सनल टच में आएंगे, है ना। प्रिंटेड में क्या, प्रिंट आपने बाहर से मंगाया, प्रिंट आ गया। लेकिन जब हैंड रिटन की बात करेंगे तो आप पर्सनल टच में आएंगे। तो ये क्या कहला जाएगा? पर्सनल टच में आने वाला ये रिटन कम्युनिकेशन कहला जाएगा। तो वर्बल और दोनों ही रिटन कम्युनिकेशन, दोनों ही किसके साथ? एक तरह से दोनों ही का काम क्या है? मैसेज को भेजना है, चाहे वर्बल से करें चाहे रिटन से करें। तो दे हाउ आर डिफरेंट इन वेज इन विच दे आर प्रोड्यूस। ओरल मैसेज आर कंटिन्यूस विद वर्ड्स एंड साउंड स्पोकन एंड अल्टर्ड इन कनेक्टेड वेज। सो ये थोड़ा मैंने बताया आपको वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। थैंक यू।
एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन में है, वो इनके फॉर्म्स और स्टाइल में भी है। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, पर्सनल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल होता है, लिटरेट होता है और रूल्स ऑफ ग्रामर ग्रामर को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ओरल में आप कुछ भी बोल दीजिए, केवल भाव समझ में आना चाहिए, लेकिन रिटर्न में आप बहुत सोच समझ के लिखेंगे, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में ये होता है। थैंक यू। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, व्हेन एवर एनी लीडर इज गिविंग हिज स्पीच, यू मे सी a large impact, a hard impact is on listeners. So अगर हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो हमारे भाषण का जैसे कह लीजिए, या हमारे लीडर्स हुए हैं, तो उनका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा जनता पर। तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव दृष्टि से देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी पड़ता है। आपने देखा, दंगे भड़क जाते हैं र्यूमर्स फैलने से, या कहीं पर कोई लीडर गलत अफवाह फैला दे, भाषण दे दे गलत। तो ये सब आपने मतलब जो ये सब अंडर वर्बल कम्युनिकेशंस है। तो इम्पैक्ट वर्बल कम्युनिकेशन का, जो हमारे वर्ड्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है और बहुत फ्रूटफुल भी हो सकता है। आपने देखा है, सेना का जो लेफ्टिनेंट होता है पूरी सेना को संगठित करके रखता है। और दूसरी तरफ में अगर नेगेटिव में देखें, तो कई जगह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत भाषण से दंगे फैला देते हैं। तो कहने का मतलब है, ये सब किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का ही इम्पैक्ट होता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रिटर्न का देखिएगा, रिटर्न तो एक तरह से प्रिजर्व हो गया, मतलब संरक्षित चीज़ हो गई है वो। लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे स्पोकन वर्ड्स हैं, और उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक तरह से तलवार से भी ज़्यादा, कहते हैं ना कि तलवार से भी ज़्यादा कटीले हमारे वर्ड्स होते हैं। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Hello, friends. Today I will give some clues to make वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्टिव। तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहला होता है प्रोनाउंसिएशन, दूसरी चीज़ है हमारी पिच, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, चौथी वोकेबलरी, पांचवी टोन एंड स्टाइल, and next other one, clarity, consciousness and completeness. So we will discuss one by one. सबसे पहले आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। तो प्रोनाउंसिएशन, जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा, हमारा जो बोलने का तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए। वी शुड प्रोनाउंस वेरी वेल। ओके, अगर आप अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ को बहुत एक्यूरेटली बोलना पड़ेगा, प्रोनाउंशिएट बढ़िया से करना पड़ेगा। दिस इज़ फर्स्ट क्लू टू मेक वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्टिव। कई बार आपने देखा कि आप जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आपकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन ही सही से नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे आपसे सीख नहीं पाएंगे। दूसरा, क्लियरिटी, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीटनेस। आपकी जो वॉइस होती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए उसमें, कंप्लीटनेस। आपको ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस पहुंच रही है जो लिसनर्स तक या नहीं, जो जहाँ तक आपका मैसेज पहुंच भी रहा है या नहीं। तो ये सब आपको, और कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया, बीच में ब्रेक लगा दिया। आपको सभी का ध्यान रखना है, क्लियरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। सो तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, लिसनर तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। थैंक्स। नेक्स्ट थिंग इज vocabulary to make our verbal communication effective. So you have to choose a good vocabulary. If you have good vocabulary, then only you can choose good words from your vocabulary. अगर आप अच्छी vocabulary होगी आपकी, तो आपसे लोग इंटरेक्ट भी करेंगे, और आपकी मैसेज का इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। थैंक्स। Another thing to make our verbal communication effective is self confidence. See, whenever you are conveying your message, then you have to keep self confidence. Only a good
लीडर इज़ दैट हु हैज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आपको कितना भी अच्छा आप जानने वाले हो, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हो, किसी विषय के एक्सपर्ट हो, आप अपनी मैसेज को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। सो यू शुड हैव self confidence. If you there is lack of self confidence, then you are not able to convey your message to listener. सबसे ज़्यादा आप कितना भी अच्छा आपकी नॉलेज हो, आप रिसीवर को जो है इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लिसनर को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सो it is most important thing that you have to keep self confidence to convey your message. Thanks. Another thing is pitch to make effective your verbal communication. See, sometimes you can see there is rising pitch, falling pitch, dividing pitch, means आप देखेंगे आवाज़ में हाई लो ये सब होता है, तो आपको अपने साउंड की पिच भी करेक्ट रखनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये वेरिएशंस जो होते हैं स्पीच जो पिच में होते हैं, वो स्पीकर को जो है आपका भाषण सुनने में ज़्यादा रोचक बनाते हैं। रोचक तरीके से आपका जो जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका भाषण होगा, आपकी बात होगी, वो सब आपके पिच पे काफ़ी डिपेंड करता है। और लिसनर को अटेंशन भी आपकी पिच ही कराती है। सो कहाँ आपको आवाज़ को उठाना है, कहाँ आपको आवाज़ को कम रखना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ पिच एंड मे अफेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक्स। अनदर थिंग इज टोन एंड स्टाइल। सो किस टोन में आप बात करें, किस स्टाइल में बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो मैसेज है केवल ये नहीं कि हर लिसनर को एक अपील दे, अच्छा फील हो, और जिस वे में जिस मैसेज को आप पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको अपना टोन और स्टाइल दोनों को सही से रखना है। वर्ड्स जो द वर्ड्स इम्पार्ट द इंटेंडेड मीनिंग व्हेन दे आर स्पोकन विद द टोन एंड स्टाइल दैट सूट द ओकेशन। अब आप मान लीजिए कहीं पर जो है किसी संस्कार में जाते हैं, तो कहीं पर अच्छा है, हंसने का समय है, तो वहाँ आप सैड मूड में, और जहाँ रोने का समय है वहाँ आप हैप्पी मूड में, तो ये टोन चेंज हो जाती है अगर, तो उसका लिसनर्स पे और जो हमारे सोसाइटी है उस पर उसका गलत इफेक्ट जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट गलत पड़ता है। सो द टोन ऑफ द वॉइस गिव्स द लिसनर एन आइडिया अबाउट द फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। तो आपकी फीलिंग्स वर्ड से जुड़ी हैं, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू टोन, अकॉर्डिंग टू ओकेशन। सो योर टोन शुड बी अकॉर्डिंग टू ओकेशन।